Hello and welcome students. In this video, I'll explain you the fourth chapter of Stars, that is the anime written by Pearl Buck. First of all, I'll give you a brief intro of this chapter. The story highlights how a Japanese doctor saves the life of an American prisoner of war and rises above narrow national prejudices. He risks his honor, career, position, and life by sheltering a war prisoner of the enemy camp and saving his life. The author has beautifully portrayed the conflict in the doctor's mind as a private individual and as a citizen with a sense of national loyalty. ये कहानी हाईलाइट करती है कि कैसे एक जापानीज डॉक्टर जो है वो एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि युद्ध में जो एक अमेरिकन प्रिजनर जो भागा हुआ था उसकी ज़िंदगी बचाता है जो नेशनल प्रिजुडाइसेस होते हैं यानी कि जो राष्ट्रीय पूर्वाग्रह होते हैं उनसे ऊपर उठकर और वो अपने सम्मान को, अपने कैरियर को, अपनी पोजीशन को, अपनी लाइफ को सब कुछ जो है उसको ख़तरे में डाल देता है। जो वॉर प्रिजनर था, जो उसका एनिमी कैंप का वॉर प्रिजनर था, उसको शेल्टर देकर उसकी ज़िंदगी बचाकर उसको शेल्टर प्रोवाइड करके। यहाँ पर ऑथर ने बहुत ब्यूटीफुली जो कन्फ्लिक्ट था डॉक्टर के माइंड में एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल और एक जो नागरिक होने के नाते जो राष्ट्रीय वफादारी बनती है उन चीज़ों को लेकर जो उसके माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा था वो यहाँ पर उसने बहुत खूबसूरती के साथ दर्शाया है। नाउ आई टेल यू व्हेन एंड वेयर द स्टोरी सेट अप। The story takes place on a coastal town of Japan in the year 1941 when Japan attacked Pearl Harbor. A war going on between America and Japan. Japanese were hostile to the Americans and ready to kill any American found in their soil. ये कहानी जो है जापान के एक कोस्टल टाउन की है इन द ईयर 1941 जब जापान ने जो है पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था और अमेरिका और जापान के बीच वॉर चल रहा था और जापानीज़ जो थे वो अमेरिकन्स के प्रति बहुत ज़्यादा जो है होस्टाइल थे यानी उनके कट्टर दुश्मन थे और रेडी रहते थे कभी भी अगर कोई अमेरिकन उनके सॉइल पर यानी कि उनकी मातृभूमि पर पाया जाए तो उसको वो मारने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। Now I'll tell you about the theme of the story. The anime gives the message that humanism transcends all man-made prejudices and barriers. Dr. Sadao upholds the ethics of medical profession in treating an enemy. The story is a great lesson of peace, love, sympathy, fellow feeling and humanism. ये स्टोरी जो है द एनिमी ये हमें ये मैसेज देती है, ये संदेश देती है कि इंसानियत जो है वो जितने भी मैन मेड प्रेजुडाइसेस और बैरियर्स हैं यानी कि जितने भी पूर्वाग्रह हैं और लोगों के द्वारा बनाई गई बंदिशें हैं, प्रतिबंध हैं, उन सबसे बढ़कर है, उन सबसे आगे है। डॉक्टर सदाव जो है अपनी मेडिकल प्रोफेशन की जो उनकी नीति थी उसको जो है सबसे ऊपर रखते हैं एक एनीमी को ट्रीट करके, उसका इलाज करके। ये जो कहानी है ये एक बहुत हमें ग्रेट लेसन देती है पीस का, लव का, सिंपैथी का, फेलो फीलिंग का और ह्यूमनिज्म का। Now I'll tell you about the main characters of the story. Dr. Sadao Hoki, a Japanese doctor trained by Americans. Sadao's father, much concerned about his son's education, a true patriot. Hana, wife of Dr. Sadao, met in America, became friends, and got married in Japan. Tom, an American prisoner of war, a soldier of US Navy. The old general, a sick Japanese army general, needed an operation, trusted only Dr. Sadao. An officer, a messenger of the general. Gardener, an old gardener in the house of Dr. Sadao. Yumi, Hana's maid servant. The cook, an old cook in the house of Dr. Sadao. Now I'll summarize the chapter. The scene of action is a spot on the Japanese coast. Dr. Sadao Hoki's house was a low, square stone built house. It was set upon rocks well above a narrow beach outlined with bent pines. Sadao's father had a deep concern for his son's education, so Sadao had been sent to America at 22 to learn all that could be learned of surgery and medicine there.
He returned at 30. He became famous not only as a surgeon but as a scientist also. इस स्टोरी का सीन ऑफ एक्शन जो है वो स्पॉट किया गया है जापान के तट पर। डॉक्टर सदाओ होकी का जो मकान है वो निचला बना हुआ है, एक स्क्वायर स्टोन बिल्ट हाउस है और ये नैरो बीच जिसके दोनों तरफ पाइन्स के पेड़ हैं उसके ऊपर चट्टानों पर बना हुआ है। सदाओ के फादर जो हैं उनकी चिंता का मुख्य कारण जो है वो उनके बेटे की एजुकेशन था, इसीलिए सदाओ को 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया ताकि वो वहाँ जाकर सर्जरी और मेडिसिन के एजुकेशन जितनी भी हासिल कर सकें वो वहाँ जाकर कर सकें और वो 30 साल की उम्र में वापस लौट के आए। अब तक न सिर्फ वो एक फेमस सर्जन बन चुके थे बल्कि एक साइंटिस्ट भी बन चुके थे। It was the time of the World War. Japan was at war with America. Dr. Sadao had not been sent abroad with the troops. The old general was under medical treatment and he might need an operation. So Dr. Sadao was being kept in Japan. ये विश्व युद्ध का समय था यानी वर्ल्ड वॉर का समय था। जापान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा था। डॉक्टर सदाओ को जो है विदेश नहीं भेजा गया सेना के साथ क्योंकि ओल्ड जनरल जो था वो अंडर ट्रीटमेंट था, अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट था डॉक्टर सदाओ के और उसे कभी भी ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ सकती थी और इसीलिए डॉक्टर सदाओ को जापान में ही रखा गया। Sadao watched mist hide outlines of a little island near the shore. Then it came creeping up the beach below his house. His wife Hannah came out and put her hand on his arm. It gave him pleasure, then she laid her cheek against his arm. सदाओ जो है वो देख रहा था तट के पास जो एक छोटा सा आइलैंड था उसकी आउटलाइंस को जो धुंधिया कोहरा था उसने कवर कर लिया था और उसके बाद वो क्रीप करता हुआ धुंधिया कोहरा जो था वो क्रीप करता हुआ उसके घर के नीचे आ गया। उसकी वाइफ हना जो थी वो बाहर आई और उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ जो था वो उसकी आम में यानी कि उसकी बाह में डाला और इससे उसको खुशी मिली और उसके बाद उसने अपना चीक जो है वो उसकी आम पर लगाया। At this moment, both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He staggered a few steps, then he curled mist hid him again. Hannah and Sadao leaned over the railing of the veranda. They saw a man crawling on his hands and knees. Then he fell down on his face and lay there. They thought that it was perhaps a fisherman who had been washed from his boat. उसी पल उन दोनों ने देखा कि कोहरे में से कुछ ब्लैक सी चीज जो है उनको आती हुई नजर आई। ये एक आदमी था जो कुछ कदम लड़खड़ाता हुआ चला और उसके बाद जो धुंध और कोहरा था उसने उसको कवर कर लिया। हना और सदाओ जो थे वो अपने बरामदे की रेलिंग पर झुककर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है वो अपने हाथों और अपने घुटनों के बल पर रेंगता हुआ उनको नजर आया और उसके बाद वो अपने फेस को नीचे करके वहां पर पड़ा रहा। उन्होंने सोचा कि शायद ये एक मछुआरा होगा जो कि अपनी बोट से बहकर वहां पर आ गया। When they came towards him, they saw that he was wounded. He lay motionless. They saw his face. Hannah whispered that he was a white man. Sadao began to search for the wound. Blood oozed freshly at his touch. In order to stanch the fearful bleeding, he packed the wound with the sea moss. The man was unconscious. He moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. जब वो उसके नज़दीक गए तो उन्होंने देखा कि वो ज़ख्मी था। वो बिल्कुल जो है मोशनलेस वहाँ पर पड़ा हुआ था। उन्होंने जो है उसका चेहरा देखा। हना ने धीरे से कहा कि वो एक वाइट अमेरिकन है। सदाओ ने ज़ख्म को सर्च करना शुरू किया और उसमें से जो है बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा ब्लड जो है वो
बह रहा था, छूने से उसको पता चला। और अब उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो है उसमें जो बुरी तरीके से उसमें ब्लीडिंग हो रही थी, उसको रोकने के लिए उसने समुद्र की जो काई थी उससे उस ज़ख्म को कवर कर दिया, ढक दिया। और ये जो मैन था, ये जो आदमी था, वो अनकॉन्शियस था और वो जो है दर्द से कराह रहा था, लेकिन वो जागा हुआ नहीं था। Sadao muttered, "Well, what shall we do with this man?" He said that the best thing that they could do was to put him back in the sea. Hannah agreed with it. Sadao explained that it was a difficult situation. If they sheltered a white man in their house, they would be arrested. If they turned him over as a prisoner, he would certainly die. They were staring upon the inert figure with a curious repulsion. सदाओ ने बड़बड़ाते हुए कहा कि अब हम इस आदमी के साथ क्या करें। उसने कहा सबसे बेहतर चीज़ ये होगी कि हम इसे वापस समुद्र में फेंक दें। हना भी इस बात से सहमत थी। सदाओ ने इसे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है एक्सप्लेन किया। अगर वो एक वाइट अमेरिकन को अपने घर में शरण देंगे तो वो डेफिनेटली अरेस्ट कर लिए जाएंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगर उसको एक प्रिजनर की फॉर्म में जो है उसको पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाए तो वो निश्चित तौर पर मारा जाएगा। वो उसकी इनर्ट फिगर, वो जो इनर्ट फिगर थी उसकी जो जैसे वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में पड़ा हुआ था, वो उसको बिल्कुल क्यूरियस रिपल्शन के साथ यानी कि काफ़ी जिज्ञासा पूर्वक उसको देखने लगे। Then they tried to find out what he was. He looked American. The battered cap had fainted lettering US Navy. They concluded that he was a sailor from an American warship. The man was a prisoner of war. He had escaped and was wounded in the back. Hannah asked Sadao if they were able to put him back into the sea. Sadao hesitated. If the man had been whole, he could be turned over to the police without difficulty as he was his enemy. All Americans were his enemy, but since he was wounded, they should not throw him back to the sea. उन लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि वो क्या था, वो कौन था। उन्होंने देखा कि वो एक अमेरिकन लग रहा था और उसकी जो फटी से पुरानी सी जो कैप थी उसके ऊपर धुंधले अक्षरों में यूएस नेवी लिखा हुआ था। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो एक सेलर था अमेरिकन वॉरशिप का, और ये जो मैन था वो एक कैदी था वॉर का, और वो भागा हुआ था और जो है बैक में वो काफ़ी ज़ख्मी था, घायल था। हना ने सदाव से कहा कि क्या वो उसको वापस समुद्र में फेंक सकेंगे। सदाव थोड़ा सा हिचकिचाया। अगर वो आदमी पूरी तरह से स्वस्थ होता तो उसे जो है बिना किसी दिक्कत की जो है पुलिस को हैंडओवर किया जा सकता था, क्योंकि वो उनका दुश्मन था। सारे जो अमेरिकन्स थे वो उनके दुश्मन थे, लेकिन चूंकि वो एक घायल पर्सन था इसलिए उसको वापस समुद्र में नहीं फेंका जा सकता था। Hannah observed that there was only one thing left to do. They must carry him into their house. Sadao was not sure about the reaction of the servants. Hannah suggested that they must tell the servants that they intended to give him to the police. She said that they must do so, otherwise all of them would be in danger. हना ने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ एक चीज़ बची थी करने के लिए कि वो उसको अपने घर में ले जाएं। सदाओ अपने सर्वेंट्स के रिएक्शन को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं थे कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। हना ने उसको सजेस्ट किया कि वो अपने सर्वेंट से ये कहेंगे कि वो उसको पुलिस को हैंडओवर कर देंगे, और हना ने ये भी कहा कि उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा वरना वो लोग खतरे में पड़ जाएंगे। Together they lifted the man. He was very light. They carried him up the steps and into the side door of the passage. They carried him up to an empty bedroom. Since the man was quite dirty, Sadaf suggested that he had better be washed. If she fetched the water, he would wash the man. Hannah could not bear him to touch the man. She offered to tell the maid Yumi. Sadao took the responsibility of informing others.
उन दोनों ने उस आदमी को उठाया। वो काफ़ी हल्का हो चुका था, उसका वज़न काफ़ी कम हो चुका था क्योंकि काफ़ी दिन से उसने खाना नहीं खाया था। वो उसको जो है स्टेप्स पर लेके गए और साइड डोर का जो था पैसेज का, उसमें से वो उसको लेकर गए। वो उसको एक खाली बेडरूम में लेके गए और क्योंकि वो काफ़ी गंदा था, सदाव ने सजेस्ट किया कि पहले उसको वॉश कर दिया जाए। अगर हना पानी ले आएगी तो वो डॉक्टर सदाव जो हैं उसको वॉश कर देंगे। हना इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई कि वो उसको यानी कि जो डॉक्टर सदाव हैं वो उसको टच करें। उसने ऑफ़र किया कि वो यूमी को उसको वॉश करने के लिए कह देगी और सदाव ने ज़िम्मेदारी ली बाकी लोगों को इन्फॉर्म करने की। The pallor of the unconscious man's face moved him first to stoop and feel his pulse. It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. Sada observed that he would die unless operated upon. The man was very young, perhaps not even 25. The man had to be washed first. However, the servants refused to do so. They did not want their master to heal the enemy. डॉक्टर सदाव ने उस अनकॉन्शियस मैन का यानी कि जो बेहोश आदमी था उसका पीला चेहरा देखा और फिर उसकी पल्स चेक की। वो बेहोश था लेकिन वो जीवित था। उसने जो है अपना हैंड जो था उसके कोल्ड ब्रेस्ट के अगेंस्ट रखा। उसका हार्ट जो था वो भी बिल्कुल अभी अलाइव था। सदाव ने ऑब्ज़र्व किया कि वो मर जाएगा अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया। वो आदमी अभी काफ़ी यंग एज का था, शायद 25 इयर्स का भी नहीं रहा होगा और ये मैन जो था उसको पहले वॉश करना था। यद्यपि जो सर्वेंट्स थे उन्होंने उसको वॉश करने से मना कर दिया था और वो नहीं चाहते थे कि उनका मालिक जो है अब किसी दुश्मन का इलाज करे, उसको ठीक करे। Hannah washed the man till his upper body was quite clean. Sadao put his instruments upon a sterilized towel. He began to wash the man's back carefully. He asked Hannah to give the anesthetic if he needed it. Hannah choked. She clapped her hands to her mouth and ran out of the room. He heard her retching in the garden. She had never seen an operation. हना ने उस आदमी की बॉडी को तब तक क्लीन किया जब तक कि उसका अपर बॉडी पार्ट जो थे वो अच्छी तरह से साफ नहीं हो गए। सदाओ ने अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो एक स्टेरिलाइज टॉवल पर रखे और उसने जो है उस आदमी की बैक को काफ़ी सावधानी पूर्वक जो है वॉश करना शुरू किया। उसने हना से कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो उसको एनेस्थेटिक दे दे। हना जो थी वो चोक्ड हो गई, उसका गला रुंध किया और उसने जो है अपने मुंह पर हाथ रखा और वो दौड़कर कमरे से बाहर चली गई। सदाओ ने सुना कि वो गार्डन में जो है वॉमिटिंग कर रही थी, उबकाई कर रही थी और उसने कभी भी पहले ऑपरेशन नहीं देखा था। Sadao proceeded swiftly. Hannah came in. Sadao asked her to saturate the cotton and hold it near his nostrils. She had to move it away a little when he breathed badly. Then Sadao got busy. He felt the tip of his instrument strike against something hard. It was just near his kidney. Then, with the cleanest and most precise incision, the bullet was out. The man quivered, but he was still unconscious. Sadao gave him an injection, and man's pulse grew stronger. सदाव जो था उसने तेज़ी से काम किया। हना अंदर आई। सदाव ने हना से कहा कि वो एक कॉटन जो है वो उस आदमी के नॉस्ट्रल्स के पास जो है वो पकड़ के रखे और उस हना को जो है बार-बार वो कॉटन जो है वो हटानी पड़ रही थी क्योंकि उसको जो है वो बैडली ब्रीथ कर रहा था, बुरी तरीके से उसको साँस आ रही थी। और फिर उसके बाद जो है सदाव जो था वो काफ़ी बिज़ी हो गया। उसने महसूस किया कि जो उसके इंस्ट्रूमेंट जो था वो किसी हार्ड चीज़ से अंदर जो है उसके वो टकराया और ये जो था उसके बिल्कुल किडनी के नज़दीक था और उसके बाद जो है उसने बहुत सावधानी पूर्वक जो है वो बुलेट बाहर निकाली। वो आदमी जो था वो कराहया लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस था।
सदाव ने उसको एक इंजेक्शन दिया और उस आदमी की पल्स जो थी वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती गई। Hannah had to serve the young man herself, for none of the servants would enter the room. The man grew stronger day by day. The servants decided to quit if their master kept the enemy hidden there. On the seventh day, the servants left together. Hannah carried the morning food to the prisoner. On coming back, she asked Sadao why they could not see clearly what they ought to do. हन्ना को खुद उस यंग मैन की जो है सेवा करनी पड़ी, क्योंकि उसके जो सर्वेंट्स थे उन्होंने वहां आने, उसके रूम में आने से मना कर दिया था। और वो आदमी जो था, वाइट अमेरिकन जो था, वो जो है डे बाय डे स्ट्रांग होता गया। और जो सर्वेंट्स थे उन्होंने एक साथ उस अपने मालिक का घर जो है छोड़ने का डिसाइड किया, अगर वो उस एनिमी को अपने घर में रखेगा। और 7वें दिन जो सर्वेंट्स थे उन्होंने एक साथ जो है अपने मालिक का घर छोड़ दिया। हना जो थी वो अमेरिकन प्रिजनर के लिए मॉर्निंग फूड लेकर आई और वापस आने पर उसने सदाव से पूछा कि उन्हें स्पष्ट क्यों नजर नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। In the afternoon, a messenger came in official uniform. He asked Dr. Sadao to come to the palace at once as the old general was in pain. Hannah breathed a sigh of relief. When Sadao came to say goodbye, she revealed her fear. She had thought that they had come to arrest him. Sadao promised to get rid of them, of that man for her sake. Sadao told the general about the man he had operated upon. The general acknowledged why Sadao was indispensable to him. The general promised to send his private assassins to kill the man and remove his body. He asked Sadao to leave the outer partition of the white man's room to the garden open while he slept. दोपहर में ऑफिशियल यूनिफॉर्म में एक मैसेंजर वहां पर आया। उसने डॉक्टर सदाव से कहा कि वो फौरन महल में चले, क्योंकि ओल्ड जनरल जो था उसको पेन हो रहा था। हना ने राहत की सांस ली। जब डॉक्टर सदाव उसको गुड बाय कहने के लिए आए, उसने अपना डर जो था वो जाहिर किया। उसने सोचा था कि शायद ये मैसेंजर जो है वो उसको अरेस्ट करने के लिए आया है। डॉक्टर सदाव ने उससे प्रॉमिस किया कि वो उसकी खातिर उस आदमी से यानी वाइट अमेरिका से छुटकारा पा लेगा। सदाव ने जनरल को उस आदमी के बारे में सब कुछ बता दिया। डॉक्टर सदाव ने जनरल को बताया कि उसने उस आदमी का ऑपरेशन किया है। अब जो जनरल था वो ये समझ गया कि उसके लिए ऐसा करना क्यों ज़रूरी था। जनरल ने डॉक्टर से प्रॉमिस किया कि वो अपने जो है निजी हथियारे यानी प्राइवेट असिस्टेंस जो है वो उस आदमी को मारने के लिए भेजेगा और उसकी बॉडी भी वो वहाँ से रिमूव करा देगा। उसने डॉक्टर सदाव से कहा कि वो जो है उस रूम का जो आउटर पार्टीशन है, वाइट मैन के रूम का जो आउटर पार्टीशन है, वो गार्डन की तरफ खुला रखे जब वो सो जाए। Sadao went home thinking over the plan. He would tell Hannah nothing. He was surprised to see the young American out of bed and preparing to go into the garden. He complained that the muscles on one side felt stiff. Dr. Sadao said that exercise and massage will be helpful. He then asked Tom, the young American, to go to bed. Sadao slept badly that night. सदाव जब घर जा रहा था तो अपने प्लान के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा कि वो हना को कुछ नहीं बताएगा, और वो जब घर पहुंचा तो वो काफ़ी सरप्राइज हुआ ये देखकर कि जो वाइट अमेरिकन था वो खड़ा हो चुका था और गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा था। उसने शिकायत कि उसकी एक साइड की जो मसल्स हैं वो काफ़ी स्टिफ हो गई हैं, काफ़ी जो है सख्त हो चुकी है। डॉक्टर सदाव ने कहा कि एक्सरसाइज और मसाज के ज़रिए जो है वो ठीक हो जाएगी, वो काफ़ी लाभदायक रहेगी। उसके बाद उसने जो है टॉम से कहा, यानी कि यंग अमेरिकन से कहा अपने बिस्तर पर जाने के लिए। सदाव भी उस रात काफ़ी गहरी नींद सोए। The next morning, Sadao went to the guest room and found him asleep. The second night also passed. The young man was still there. He had shaved himself. There was a faint color in his cheeks.
Dr. Sadao told him that he was quite well then. He offered to put his boat on the shore that night. It would have food and extra clothing in it. Tom might be able to row to that little island not far from the coast. It had not been fortified. Nobody lived there as it was submerged in a storm. Since it was not the season of a storm, he could live there till he saw a Korean fishing boat pass by. अगली सुबह जब डॉक्टर सदाव गेस्ट रूम में गए उन्होंने पाया वो गहरी नींद में सो रहा था। सेकेंड नाइट भी इसी तरीके से गुजर गई और जो यंग मैन था यानी कि वाइट अमेरिकन अभी भी वहीं पर था। उसने अपनी जो है शेव किया और उसके जो चीक्स थे वो काफ़ी फेंट कलर के हो चुके थे। डॉक्टर सदाव ने उससे बताया कि वो अब काफ़ी बेहतर है, काफ़ी ठीक हो चुका है। डॉक्टर सदाव ने उससे अपनी बोट ऑफ़र की जो है तट पर उस रात। उसमें जो है उसने जो है एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा क्लोथिंग जो है लोड कर दी, रख दी और टॉम जो है उस बोट को रो करके जो एक छोटा सा आइलैंड है उस कोस्ट से काफ़ी दूर वहाँ पर जा सकता है। वो ज़्यादा मजबूत नहीं है और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है क्योंकि जब तूफ़ान आया था तो उसमें जलमग्न हो गई थी, सबमर्ज हो गई थी। और क्योंकि अभी तूफ़ान का मौसम भी नहीं था, वो वहाँ पर तब तक रह सकता था जब तक कि उसको कोई कोरियन फिशिंग बोट जो है वहाँ से गुजरती हुई नज़र ना आए। As soon as it was dark, Sadao made preparations to help the young man escape. He gave him his flashlight. He asked him to give him 2 ashes as the sun set in case his food ran out, in case he was still there and all right. He was to signal him only one. He was warned not to signal in darkness, for it would be seen. The prisoner was now dressed in Japanese clothes. A black cloth was wrapped round his blunt head. He found the way to the boat. Sada waited till he saw one ash from the shore. जैसे ही अंधेरा हुआ सदाव ने तैयारी की उस यंग मैन को भगाने में मदद करने की। उसने उसे अपनी फ्लैश लाइट दी और उससे कहा कि वो उसे 2 बार जो है उसकी एशेस को दिखाए जब सनसेट हो जाए, जब उसका अगर फूड ख़त्म होने वाला हो तो वो उसको 2 बार जलाकर उसको दिखाए और अगर वो ठीक ठाक है और अभी भी वहीं पर है तो वो सिर्फ 1 बार जलाकर उसको सिग्नल दे। और उसने उसको वार्न किया कि बहुत ज़्यादा जब अंधेरा हो जाए तब वो उसको जो है उसकी फ्लैश लाइट ना जलाए क्योंकि वो जो है देखी जा सकती है। और प्रिजनर जो था वो जापानीज़ क्लॉथ में ड्रेसअप हुआ और फिर जो है बोट की तरफ गया। सदाव जो है वो इंतज़ार करता रहा जब तक कि उसको वन ऐश जो है वो शोर से नज़र नहीं आई, फ्लैश लाइट जो है एक बार जलती हुई नज़र नहीं आई। Dr. Sadao had been called in the night to perform an emergency operation on the general. It involved his gallbladder. For 12 hours, Sadao had not been sure the general would live. Then he began to breathe deeply again and to demand for food. Sadao had not been able to ask about the assassins. So far as he knew, they had never come. The servants had returned. The room was cleaned. डॉक्टर सदाव को जो है जनरल के द्वारा रात को इमरजेंसी ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया। उसका गाल ब्लेडर का ऑपरेशन था वो करने के लिए उसको बुलाया गया। लगभग 12 घंटे तक जो है डॉक्टर सदाव बिल्कुल इस बात के लिए श्योर नहीं थे कि जनरल जिंदा रहेगा या नहीं। फिर धीरे धीरे उसने जो है जनरल ने धीरे धीरे जो है गहरी सांस लेनी शुरू की और खाना मांगा। सदाओं की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जो है हथियारों के बारे में पूछे, एसेसिन्स के बारे में पूछे और क्योंकि अब तक वो एसेसिन्स नहीं आए थे और सर्वेंट्स जो है वो भी वापस आ चुके थे और रूम को साफ किया गया। 1 week after the operation, Sadao felt that the general was well enough to be spoken to about the prisoner. Sadao informed him that the prisoner had escaped. The general asked the doctor whether he had not promised to kill the man for the doctor. He then confessed the truth. He had been suffering a great deal.
so he thought of nothing but himself. He had forgotten his promise. That night Sada waited at dusk for the light from the island. There was none. His prisoner had gone away and was safe. Sada wondered why he could not kill the young man, though white people were repulsive. ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद सदाव ने महसूस किया कि जनरल जो है वो अब काफ़ी ठीक हो चुका था, उससे प्रिजनर के बारे में बात की जा सकती थी। सदाव ने जनरल को बताया कि प्रिजनर जो है वो भाग चुका है। जनरल ने उससे पूछा कि क्या उसने उसको मारने का प्रॉमिस नहीं किया था। फिर उसके बाद उसने कन्फेस किया, सच्चाई जो थी वो उसने कन्फेस की, उसको स्वीकार किया। उसने बताया कि वो काफ़ी चिंतित था, इसलिए उसने किसी और चीज़ के बारे में नहीं अब सिर्फ अपने बारे में सोचा और वो अपना वादा भूल चुका था। उस रात सदाव जो था वो आइलैंड से लाइट का इंतज़ार कर रहा था। वहाँ पर कोई नहीं था, प्रिजनर जो था वो वहाँ से जा चुका था सुरक्षित। सदाव जो था वो ये सोच रहा था कि वो उस यंग मैन को क्यों नहीं मार सका, यद्यपि जितने भी वाइट पीपल हैं वो सब नफ़रत के लायक हैं।